10ই ডিসেম্বর কলকাতার ধনধান্যে অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে 10ম পূর্ব ভারত মাইক্রো ফাইন্যান্স সামিট, যা আয়োজন করছে অ্যাসোসিয়েশন অফ মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন ওয়েস্ট বেঙ্গল। সহযোগিতায় MFIN, সাধন, ইকুইফ্যাক্স এবং গবেষণা অংশীদার M2I। এবছরের থিম বিকশিত ভারতের পথে মাইক্রো ফাইন্যান্সের পুনর্চিন্তা। সামিটে আলোচিত হবে পুনরুদ্ধার, ঋণ গ্রহীতা সুরক্ষা এবং বিনিয়োগকারী আস্থা, এই 3 স্তম্ভ নিয়ে। কোভিড পরবর্তী চ্যালেঞ্জে ক্ষেত্রটির স্থিতিশীলতা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধ ঋণ প্রদান ও নিয়ন্ত্রক মানদণ্ডে অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই সামিট ব্যাংক, MFI, ফিনটেক ও নীতি নির্ধারকদের জন্য সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে, যাতে জনগণ কেন্দ্রিক আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। চলুন দেখে নেব বিস্তারিত। 100% লোন, ছোট ছোট লোন, 30,000, 20,000, 50,000 লোনও আমরা 100% অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করি বড়বারে। এবং রিজার্ভ ব্যাংক বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এই সেক্টরটাকে এই জায়গায়, এত সুন্দর জায়গায় একটা তৈরি করেছে। আর একটা মেজর কারণ হচ্ছে যে আমাদের ভারতে যে এই টাকাগুলো, মানে আমাদের ব্যাংক থেকে, যে আমরা তো একটা ইন্টারমিডিয়েট লেন্ডিং ইনস্টিটিউশন, তো আমাদের এই টাকাগুলো ব্যাংক থেকে পেতে হয়। তাহলে লেন্ডার্স আর কমফোর্টেবল while they see that Reserve Bank of India is controlling very beautifully in this country. আমাদের দেখুন, আমাদের RBI হচ্ছে রেগুলেটর, RBI নিচে হচ্ছে SRO, দুটো SRO মূলত কাজ করে, একটা সাধারণ, একটা MP, এবং তার নিচে স্টেট অ্যাসোসিয়েশনগুলো কাজ করে, যেটা MP বা আরো অনেক স্টেটে অ্যাসোসিয়েশন আছে, উড়িষ্যাতে আছে বা কেরালাতে আছে, অনেক জায়গাতে। তো সেলফ ডিসিপ্লিন বলতে প্রত্যেক বছরই এই যে SRO, যারা সাধারণ এবং MP, এখানে সমস্ত কোম্পানির MDরা প্রেজেন্ট থাকে এপ্রিল মাসে। প্রেজেন্ট থেকে সেক্টরের যে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস, সেক্টরটা কোথায় আছি আমরা দাঁড়িয়ে, কত ফরওয়ার্ড, কত এমপ্লয়মেন্ট হয়েছে, পোর্টফোলিও পজিশন কি, তাদের নতুন নিড কি এসছে, সমস্ত কিছু নিয়ে একটা আলোচনা হয়। আলোচনা হওয়ার পরে কিছু রেজুলেশন হয়। সবাই থাকে, গভর্নমেন্ট থেকে থাকবে, RBI থেকে থাকবে, নাবার্ড, সিডবি, বিভিন্ন লেন্ডার, ইনভেস্টার, এছাড়া অন্যান্য জায়গায় যারা সাপোর্ট করে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থাকবে। এটা ঠিক ভয় আমি বলবো না, এটা তো আনসিকিউর্ড লোন, তো আমি কোনো কিছু তো জমা দিইনি। এবার ধরুন, এই আমরা যেটা একটু আগে আলোচনা করেছি, এই রেসপন্সিবল লেন্ডিং বা বড়োইং দুটো দিক থেকেই হতে হবে। না, সেটা রিজার্ভ ব্যাংক দ্বারা যেগুলো নিয়ন্ত্রিত, সেগুলো সেরকম হয়নি কখনো। আপনি দেখুন, আমরা তো ডিপোজিট নিই না, সেরকম হয়েছে। আচ্ছা, আমার নাম হচ্ছে প্রণব রক্ষিত। আমি একটা মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন পরিচালনা করি, সেটার নাম হচ্ছে সরলা মাইক্রো ফাইন্যান্স। सेक्टर इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है। हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरी वर्ल्ड में। हमारी पॉपुलेशन में बॉटम ऑफ द पिरामिड जो सेगमेंट है 30-40% है, उनके लिए फॉर्मल क्रेडिट पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज अगर हम 75 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करते हैं पूरे सेक्टर मिला के, उसका मतलब ये है कि करीबन 300 मिलियन लाइव्स को हम इम्पैक्ट करते हैं। 100 मिलियन से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं, राइट। बिकॉज जिनको भी एक लोन मिलता है, एटलीस्ट 50% वो एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट या हेल्पर को रखते हैं, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, राइट। तो इस सेक्टर आज भी हम बता रहे हैं कि सिर्फ 30% के आसपास पेनिट्रेटेड है, राइट। अगर इंडिया को ग्रो करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव करना है, तो इस सेक्टर को मिनिमम डबल करना है। और डबल करने के लिए इक्विटी चाहिए, डेट चाहिए बैंक से, ताकि हम सब प्रैक्टिशनर्स जो हैं हमारे बिजनेसेस को ग्रो करें, ताकि आउटरीच आज जो 75 मिलियन है वो 150 मिलियन पहुँचे, राइट। दूसरी बात हमने ये बताया आपको कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल में करीबन 15-20% कम हुआ है आउटस्टैंडिंग। वो ये इसलिए हुआ है कि डेलिंक्वेंसी बढ़ा है, थोड़ा सा पेमेंट इश्यूज रहे हैं कस्टमर्स के, जिसकी वजह से बैंकों ने थोड़ा सा लेंडिंग कम कर दिया है।
वो कम करने की वजह से हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, तो 15-20% रिडक्शन हुआ है, राइट। तो इसमें हम यही बोल रहे हैं कि ये मकसद बहुत इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए, तो हम सबको साथ में मिलके उस पर काम करना है। कस्टमर्स को भी समझना है कि उन्होंने अगर उनका पेमेंट डिले किया तो उनका क्रेडिट रिकॉर्ड खराब है। क्रेडिट रिकॉर्ड खराब होने से फिर आपको आगे फॉर्मल लोन नहीं मिलेगा। ये बात समझ नहीं पाते हैं कि उनका क्रेडिट रिकॉर्ड खराब हो रहा है, तो हम मैडम आप बिलीव नहीं करेंगे, हर लोन देने के पहले हम 2 सेशन उनका फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन करते हैं, राइट, जहाँ पे हम उनको इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल टर्म्स, रीपेमेंट क्या है, इंश्योरेंस क्या है, पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो सब हम एक्सप्लेन कराते हैं, राइट। लोन देने के पहले वापस एक बार ब्रांच मैनेजर उनको समझाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसा आपने कहा उस लेवल के कस्टमर्स को उतनी समझ नहीं है एंड वो दूसरे लोगों के बोलने से जो बहकाते हैं लोग। मैडम हमारे बिजनेस एक बहुत यूनिक बिजनेस है जहाँ पे हम कस्टमर्स को आने के लिए वेट नहीं करते, हम उनके गांव में जाते हैं, हम उनके घर के पास जाके समूह बनाते हैं, ग्रुप बना के हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद में जो भी अप्लाई करते हैं उनको इवैल्यूएट करके उनको लोन देते हैं ग्रुप मेथडोलॉजी में, जो ग्रामीण मेथडोलॉजी है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बोलते हैं उसको, राइट। तो 5 हो जाता है। तो हम हर महीने में, हर फोर्टनाइट में, हर वीकली में जब उनको मिलते हैं तभी हम वापस उनको रीइंफोर्स करते हैं कि आपका क्रेडिट रिकॉर्ड आपकी प्रॉपर्टी है, ये खराब होगा तो नुकसान आपका होगा, जो बोल रहे हैं उनका नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका होगा, क्योंकि आगे आपको फॉर्मल बैंकों से लोन नहीं मिलेगा। तो ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है, हम करते रहते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। जैसा आप समझते हैं कि आपका क्रेडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि आप अगर एनपीए हो जाएंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा, आपको कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा, वो सेम समझ जो है नीचे भी होना जरूरी है। কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে মানসী বসুর রিপোর্ট, চেতনা বার্তা, জেগে থাকে জাগিয়ে রাখে। চেতনা বার্তা, জেগে থাকে জাগিয়ে রাখে।